Vishali Gautam, and it is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the students of Galgottias College. I would also like to convey my heartfelt gratitude to our guests and students for accepting the invitation and presiding over this webinar on the topic Scope of Civil Engineering after COVID-19. It is an opportune moment to refurnish and discuss on this very topic. The webinar schedule sheds light on the scenario of the civil engineer after lockdown. This webinar will include a healthy, encouraging discussion on the very relevant topic. I ensure that this webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. Now, I would like to call upon our HOD ma'am for enriching us with her kind words and give us direction. Ma'am. Thank you, Vishali. Good morning, everyone. I am really highly honored to take this opportunity on the behalf of Department of Civil Engineering GCT to welcome you all today to this live webinar on scope of civil engineering after COVID-19. Welcome, Nipun sir. The Civil Engineering Department of GCT was established in year 2007 with an objective to the Center of Excellency for Practical Oriented Education. Okay, so we have been highly successful so far. To continue this legacy, we have gathered on this live session. I hope you all find this session highly engaging, fruitful, and beneficial for your future venture. Nipun sir, please kindly continue with your guest lecture. Yes, good morning, students, and good morning, all faculty members. Thank you for inviting me on this platform. So first, we need to talk about scope of civil engineering. As in civil engineering, what are your wide opportunities you have after doing BTech? Can anybody tell in the chat mode? Any student? Like in how many streams we can go? Like in designing, in higher education. What are the scopes after civil engineering? First, we'll talk about. Okay, we're getting answers right. So if we broadly talk about our future options, we have four major options with us. First is higher education. Higher education means you can do masters, MBA. The second one is private job. Third one is government job. Fourth one is abroad. Which should you opt right now? अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या opt करना चाहते हैं? Ma'am, do student can comment or chat right now? Do you have that option to chat? Do I am audible? Yes, sir, you are audible, sir. Yeah. Okay. So, Rishabh sir, do students have option to chat with us? Yes, sir. Yes, sir. There is some option. Yes, sir. Okay, actually, I don't getting right now the chat box with me. Just check it out. Okay, so we are getting comments over there. If any student want to speak, he can unmute himself and talk to sir also. We'll just want to make it an interactive session. अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा हमें आइडिया होगा कि किस किस चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए और ये आप ही के लिए वेबिनार रखा गया. That's why I'm telling na. If any student want to talk anything, any discussion, kindly unmute yourself and talk to sir. A government job we preferred first. Okay, government job will be preferred. Okay. Okay, all right. See, for higher education, what we have with the option with us is like GATE. अगर आप गेट के लिए जा रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन IITs में जा सकते हैं. तो मुझे बताएंगे कि गेट का एग्जाम टफ है, इजी है, क्या कैसा एग्जाम है? देखिए हमने +2 में भी रखा था कि IITs में जाएंगे हम, बट +2 में हम नहीं जा पाए. बट ऑल्दो आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में फिर भी एडमिशन ले गए हैं, तो अब इससे बड़ी यूनिवर्सिटी पे आप अगर आप हायर करेंगे तो IITs ही आती हैं इसके बाद. तो अगर हम IITs की बात करें तो IITs में जाने के लिए हमारा गेट का एग्जाम होता है. तो क्या ये टफ एग्जाम है या ईजी है एज एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए अब हम बात कर रहे हैं कोविड की, राइट? अब कोविड के बाद सिनेरियो डिफरेंट हो गया. देखिए कोविड के बाद हम अब वेबिनार्स पे आ गए हैं. पहले हम सेमिनार्स पे करते थे, पहले आप फिजिकल क्लासेस लगाते थे, अब आप ऑनलाइन लगा रहे हैं. तो ऐसे अगर कोविड में बात करें तो कोविड ने
आईआईटीज को भी हिट करा है, इवन आईआईटीज की एडमिशंस भी लो गई हैं। तो इसी पर्पस से इस बार लेटेस्ट कोई रूलिंग बता सकते हैं स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए आईआईटी ने क्या निकाला है? लेटेस्ट रूलिंग निकाली है आईआईटीज ने जो गेट का एग्जाम लेते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। ओके Subhanshu, you can unmute yourself. Sir, for GATE examination, what IITs have done that they have given means wide range of dates between 5 to 14, so that these students don't get affected. If the date earlier GATE examination was held within 2 days or within 2-3 days, this time they have taken a wide range of 7 days. Also, the number of centers and number of slots have increased. Okay, great, Himanshu. But the benefit to the student is like that pre-final year student is eligible for GATE exam right now. मतलब जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है इस बार गेट एग्जाम्स के लिए। ये प्रीवियस 5 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा फाइनल ईयर और पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। तो जो स्टूडेंट थर्ड ईयर इस वेबिनार को सुन रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेनिफिट वाला पार्ट ये है कि आप थर्ड ईयर में गेट को अप्लाई कर सकते हैं इस बार। सेकेंड ऑप्शन, वाइड रेंज ऑफ डेट्स तो है बट डेट्स तो मेरे लिए इतनी बेनिफिट नहीं है कि मैं कभी भी जाके एक्सेस कर सकता हूँ। अब इस बार नेक्स्ट उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्या दी है, यू कैन टेक द गेट एग्जाम इन 2 स्ट्रीम्स। तो सिविल एज एन सिविल इंजीनियर मैं सिविल में तो गेट दे सकता हूँ, सेकेंड स्ट्रीम भी मेरे लिए ओपन है एक ही बार में, एक ही साल में, कि मैं सेकेंड स्ट्रीम में भी गेट का एग्जाम दे सकता हूँ। एज एन सिविल इंजीनियरिंग व्हाट शुड वी ऑप्ट, हमें एज एन सिविल इंजीनियर, सिविल तो मेरी कोर ट्रेड हो गई है, सेकेंड मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए? क्या लगता है कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए जो बूम में आए? कोविड के बाद क्या लगता है कि क्या चीज बूम में आएगी? या सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप की बात करें तो आजकल किस बिल्डिंग्स को जल्दी पासिंग मिल जाती है? एनी आइडिया? Environment. Sir, Environment, very good, yes. So as per GATE procedure, they have allowed civil engineers to appear for environmental and architectural. Yes. So in between Another two, student has raised his hand. Syed, Yes, ma'am. you raise your hand. Yes, yes. What is your doubt? नो मैम, डाउट नहीं था, ये यही था कि जो सिविल इंजीनियर के साथ ट्रेड्स हैं वो फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के साथ हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ले सकते हैं और उसी के साथ हम प्लानिंग ले सकते हैं, सिर्फ ओनली, मतलब हर कुछ नहीं ले सकते। हाँ जी, अगर हम तो चाहें अब सिविल इंजीनियर के साथ मैथमेटिक्स में गेट करें, गेट का एग्जाम दें, तो वो नहीं हो पाएगा, वो फिक्स हैं चीजें। ठीक, तो यस ग्रेट। तो अगर इसी चीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो कोविड के बाद देखें, अगर सिविल के बाद सेकंड ट्रेड जो बूम में आने वाली है, आज का हमारा टॉपिक यही, कोविड के बाद क्या चीज बूम में आएगी, तो क्या बूम में आएगी? एनवायरनमेंट बूम में आएगी। और एनवायरनमेंट का एग्जाम गेट फर्स्ट टाइम ले रही है। इवन आईआईटीज ऑफर मास्टर्स इन एनवायरनमेंट और काफी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, एनआईटीज भी ऑफर करते हैं, बट इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि एनवायरनमेंट में आ रही है। क्यों? अगर आप कोई भी स्टिल स्टोरीज देखेंगे, स्टिल स्टोरीज मतलब जिसमें ग्राउंड में पार्किंग होती है, प्लस S+12 बिल्डिंग्स देखेंगे आपकी नोएडा साइड में, तो सब में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स के बन रहे हैं बट प्रोजेक्ट पासिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, बट एक प्रॉब्लम क्या रह रही है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम रह रही है। तो उन केसेस में एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स की सर्टिफिकेशंस आ चुकी है आजकल एरा में, तो ग्रीन बिल्डिंग्स को जल्दी सर्टिफिकेशंस मिलती है, जल्दी पासिंग मिलती है, जल्दी लोन्स मिलते हैं, और प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज भी काफी दे रही है। तो अगर हम ऑप्शन में करें, अगर एज एन सिविल इंजीनियर मेरे पास एक आर्किटेक्चर ऑप्शन है और एक एनवायरनमेंट ऑप्शन है, तो मैं आईआईटीज के लिए एनवायरनमेंट ऑप्ट करूंगा। और कोविड के बाद आपने खुद ही देखी है कि पहले क्या होता, कोई कहीं पे भी फूड इनटेक कर लेता था, कोई वेंडर, नॉर्मल वेंडर, अब काफी ज्यादा हाइजीन देखी जाती है। ऐसी सेम एक एरा आने वाला है जिसमें बिल्डिंग्स में भी यही चीज देखे जाएंगे। पहले क्या होता था, अगर मैं अब आपके नोएडा का एग्जांपल दें या गुड़गांव या एनसीआर का एग्जांपल दें, जो छोटा बिल्डर होता था वो कंस्ट्रक्शन कर देता था बिल्डिंग की, G+12 भी कर देता था, बट उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। कि आफ्टर 5 इयर्स 8 इयर्स जो वहां पे पीपल या रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, वहां पे सीपेज प्रॉब्लम बड़ी कॉमन रहती है। सेकंड, अगर आप बाहर से पेंट्स देखेंगे वो इतने प्रॉपर नहीं होंगे। थर्ड, अगर आप थोड़ा सा भी स्क्रू करेंगे कहीं पे आप वॉल हैंगिंग या वॉल पेंटिंग के लिए, तो वो भी काफी ब्रेक करने लग जाते हैं।
तो इसलिए आने वाला टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जाने वाला है, और प्लस एनसीआर के जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो आपने देखे हैं, तो इन केसेस में ग्रीन बिल्डिंग्स का स्कोप आने वाला है। तो आप सिविल में तो आप दे ही रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाई, सीवेज और प्लस एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा सिलेबस आएगा। और अभी एक फ्रेश ट्रेड है ये, तो एज कंपेयर टू कंपटीशन इसमें कम होने वाला है एज कंपेयर टू। तो हायर एजुकेशन के बाद मैं सेकंड जॉब की बात करता हूं, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड अब्रॉड। अब हायर एजुकेशन हम कर चुके हैं, एंड में अगर मैं हायर एजुकेशन की बात भी करूं, एंड एम तो क्या है, मुझे जॉब चाहिए या मैं अपना कुछ करूंगा। इवन इफ आई डू मास्टर्स, मास्टर्स के बाद मेरे पास ऑप्शन है पीएचडी की, पीएचडी के बाद भी एंड एम इन तीनों में ही जाने वाला है, इन दोनों में जाने वाला है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या आप अपना कुछ करोगे। एज अ नॉर्मल 90% टेंडेंसी क्या होती है, हम प्राइवेट या गवर्नमेंट में से कुछ ऑप्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों से पहले हम ये जान लें कि व्हाट आर माय सैलरी एक्सपेक्टेशंस। जॉब तो मैं कोई भी करूं, बट मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, बट दैट शुड बी रियल वन। रियल वन मीन्स कि रियलिटी से होनी चाहिए। अब मैंने ड्रीम करा कि मुझे 4 लाख पर मंथ कोई दे दे, बट एज एन फ्रेशर मुझे 4 लाख कोई मंथ नहीं देने वाला। बट अगर मुझे इतना मिल रहा है तो आई थिंक इट्स मोर देन सेटिस्फाइड कि मेरे को कोई अमाउंट मिल रही है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सैलरी के लिए? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? Any idea? Per month salary 15,000 is good for me, 25,000 is good for me, 40,000 as a fresher. Okay, we'll take an, yes, I think somebody wants to talk. Yeah, Subhanshu sir. Initially, we don't expect a great salary in Okay. the beginning of our means as we start our career. For the first 2-3 years, we should be more focused on gaining new skills and more knowledge. Thereafter, if the salary is not good, I can say that thereafter we must expect a higher salary. For the beginning, we should more be focused on improving our skills and knowledge. Okay, we'll take an average salary of 20,000, right? If I am as a fresher, I will just join a good company. I will getting 20-25,000 in my hand with the expenses and accommodation with us. So first we will talk about scope in private companies, like the big companies like L&T, DLF, Flo Daniel, that is designing company. तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें प्राइवेट कंपनीज की, तो अगर ये कंपनी में अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे आती है, तो किसको आप लेके जाएगी? इफ देयर आर 100 स्टूडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या वो 100 को ले जाएगी L&T, या वो लिमिटेड को लेके जाएगी? तो आंसर ऑफ कोर्स है कि लिमिटेड को लेके जाएगी। वो लेके जाएगी 4 to 5 स्टूडेंट्स। अब वो 4 to 5 स्टूडेंट्स में अगर हमें आना है, तो हमें क्या क्या चीजें या उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लाइक फर्स्ट, आपके पास कॉलेज बहुत अच्छा है, बट वो सभी के पास कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही है, तो वो सबके लिए एक कॉमन चीज होगी कि सभी उस गुड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड वो आजकल क्या देखती है? स्किल देखती है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी को, आपके कॉम स्किल्स देख रही है। फोर्थ, आपके देख रही है ग्रेड्स देख रही है। फिफ्थ, जो भी कंपनी है, अगर मान लीजिए मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, इट्स लाइक एन इंटरव्यू, अगर मेरे को आपकी पूरी क्लास से करनी है, इट विल टेक मोर देन 2 days, तो हमें 2 दिन लग जाएंगे अकेले अकेले स्टूडेंट से बात करते हुए। कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके 2-2 दिन यहाँ पे लगाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो वो टेस्ट लेने वाली है, वो कौन सा टेस्ट लेने वाली है? रिटन टेस्ट। तो जो भी सबसे अच्छी कंपनीज है लाइक L&T, DLF, तो इनका क्राइटेरिया क्या होता है? अगर रिटन टेस्ट में क्या पूछते होंगे? टेक्निकल पूछते हैं, क्या पूछते हैं? एनी पर्सन हैव आइडिया, एनी स्टूडेंट हैव एन आइडिया ऑफ इट कि क्या पूछा जाता है मेरे से इंटरव्यू? अगर मुझे यही नहीं पता होगा, तो मैं पहले उस फेज तक पहुंचूंगा कैसे? तो मेरे से टेक्निकल पूछेंगे, नॉन टेक्निकल? Sir, for all the companies which we have appeared till now, initially in the first stage, they don't take our technical test, they take our aptitude test mostly. Exactly. The first test is of aptitude, but aptitude is not in a course curriculum of engineering, civil engineering if we talk about. So first we'll focus on aptitude, and the second is the technical part, or GD session will be there. Third, the big companies will ask, like Siemens will ask for you some reference as well, because they generally don't prefer freshers as compared to experience when they don't prefer freshers. तो
आप एज एन इंजीनियरिंग करते हुए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर बन सकते हैं while doing engineering? Yes, and yes, sir, we can while going through trainings and side blades. एग्जैक्टली कि अगर हम ट्रेनिंग्स में जाएं, बेटर ट्रेनिंग्स में जाएं, तो हम उस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं. लाइक मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताता हूँ. व्हाइल आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, ये आपके साथ भी होता होगा, लाइक व्हेन यू आर इन थर्ड और फाइनल ईयर, तो आपके जो नेबर्स हैं वो आपको कॉल करते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आपको बुला लेते हैं, आपके रिलेटिव्स कॉल कर लेते हैं, कॉल करके कहते हैं जी यहाँ पे ना बीम्स में क्रैक आ रहे हैं, तो बताइए क्या रीजन होगा. अब ऑल दो मैंने सोम भी पढ़ी है, स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, आरसीसी भी पढ़ी है, स्टील भी पढ़ी है, ठीक है, IS 800 भी पढ़ा है, IS 400 भी पढ़ा है, 456 भी पढ़ा है, बट मैं वो ऑप्ट करके दिखा वहां पे बता नहीं पाता कि वो क्रैक क्यों. तो मेरे को जनरली क्या कहना पड़ता है, जनरली कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम थोड़ा सा गलत करा होगा, या कभी कहते हैं आपकी सीपेज ज्यादा आ रही होगी. एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता कि अगर वो डायगोनल क्रैक्स है दैट मींस दैट इज अ shear फेलियर, और अगर वो वर्टिकल क्रैक्स है दैट मींस दैट इज अ मेन रेनफोर्समेंट फेलियर. तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में गैप है, वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का गैप कहाँ से पूरी कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग से पूरी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा ट्रेनिंग वाले पार्ट को आप काफी सीरियसली लीजिए. अगर कोई भी सिविल इंजीनियर, अगर कोई कहता है कि मैंने आज तक कोई साइट नहीं देखी, तो एज एन सिविल इंजीनियर अगर हम बात करें, वो सबसे बड़ा एक फेक वो है, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकलोगे हार्डली 1 किलोमीटर के रीजन में आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, बट वो उसको थ्योरी से कैसे मैच करना है, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. अगर आप वो गैप को फुलफिल कर लेंगे तो आप वाला पार्ट कवर अप कर पाएंगे. सेकंड, द मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट कंपनीज इज, अगर आपको अच्छी पोजीशन पे लेके जा रही हैं तो वो आपसे shear force बेंडिंग मोमेंट निकलवाना नहीं सिखाएंगे, वो आपसे सेकंड पार्ट क्या करना है, until unless you are into designing, तो वो आपको सेकंड पार्ट क्या कहेगी, आपको ड्राइंग पढ़नी आती है. इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो आपको ड्राइंग पढ़नी आती है. तो अगर मैं एक बात करूं आपसे ड्राइंग की, कोई भी आपने ड्राइंग देखी होगी, उसमें राइट साइड में एक स्मॉल से कॉलम्स बने होता है जहां पे कंपनीज का नाम आता है, लाइक इट आ कंपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट अगर कुछ डिजाइन कर रही है, उसके ऊपर कुछ नोट होते हैं. कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है उस नोट में क्या लिखा होता है, नोट लिखा होता है, उस नोट में क्या लिखा होता है. दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कि पूछ लेते हैं कि एक नॉर्मल आपसे एक ड्राइंग है, ड्राइंग के राइट में नोट लिखा होता है, नोट में क्या लिखा होता है. और आप कोई भी साइट की ड्राइंग देखोगे आपको आइडिया हो जाए. एनीबॉडी? It might be scale or something. Okay, it might be scale, but if we talk about the civil engineering drawings like RCC drawing, the footings one, the foundation one, or the substructure, hardly there will be any scale over there. And the symbols, sir, symbols. Okay, symbols. Okay, Chainage is Good. mentioned. Chainage. We'll talk about the construction drawings, like when L&T hired you in their company as a site supervisor or site engineer, they will just give you the structural drawings to you and told you that they just built up that building or just construct the building according to the drawings. The first thing they should be mentioned over there is the grade of concrete. Grade of, like it is M25, M20, M30. The second thing, there will be the grade of steel. That will be the grade of steel. These two things are basic things, and the one stamp with the designers, like that is good for construction stamp, like it's after wetting. Anybody can tell me what is the wetting thing, or which software we can use for designing? Like there are so many softwares in the industry right now which the industry is using for designing of building. Like StatPro. Very good. Bentley StatPro. E-tabs, StatPro and E-tabs are quite common. Like अगर आप StatPro में कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कोई आपने बिल्डिंग डिजाइन करी StatPro में, like I am a structural engineer by profession, तो अगर मैं कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, अगर मेरे से एक गलती होगी तो क्या मुझे कोई सेकंड चांस दे रहा है, क्या मुझे कोई सेकंड चांस दे रहा है? फिर टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स जब बन रही थी, वहां पे ब्रिज था, ब्रिज क्या हो गया एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, गिर गया. पता होगा आपको 2010-11 की बात है जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब वहां पे एक ब्रिज गिर गया. तो कोई सेकंड चांस दे रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर को? नहीं दे रहा. तो अगर हम बात करें, अगर मैंने StatPro अगर किसी ने सीखा भी होगा, लाइक वी आर इनटू डिजाइनिंग, हम StatPro की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो अगर आपने सीखा होगा
तो आप इट्स लाइक अ पेंट, कि अगर मैंने पेंट कुछ गलत मलत बना के पेंट कर दिया तो वैसे ही वो ड्राइंग शो करेगा। ऐसे स्टैट भी क्या है, अगर आपने जो आप उसको वेट बताओगे, जो आप स्टिल स्टोरी का वेट बताओगे, उस वेट के अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीजें जज करेगा। तो जैसा अगर मैंने उसको वेट कम बताया तो वेट कम के वेट के हिसाब से वो स्टील डाल देगा। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में एक चीज होती है जिस सेकंड चेक मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड वेटिंग। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो हाई राइज बिल्डिंग हो गया, इवन आजकल छोटे प्रोजेक्ट्स में भी करा जाता है, जो अच्छी कंपनी कर रही है, मैंने डिजाइन करा, आपको आपसे वेट कराया जाएगा, आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करने के बाद एक स्टैंप लगती है इंजीनियर की, दैट इज कॉल्ड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन के बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अब आपने मुझे एक एग्जांपल दिया था कि मैं 3 इयर्स तो पहले कंपनी में काम करूंगा, देन आई विल गो फॉर इंक्रीमेंट, कि अब मेरे को अब देखिए कि सैलरी मुझे क्या मिल रही है। तो अगर आई विल स्टार्ट विद 20,000, अगर मैं 20,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 3 साल के बाद मैं फ्रेशर नहीं रहा, मैं एक्सपीरियंस वन बन गया। अब एक्सपीरियंस वन बनने के बाद मैं 50-60,000 डिमांड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंपनीज टू कंपनीज। तो ये सारा सिनेरियो रहता है प्राइवेट कंपनीज का, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो भी यही चल रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती है, ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो एक्सपीरियंस मैन को होता है। नाउ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब स्कोप। एज एन सिविल इंजीनियर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी स्कोप है? एज एन सिविल इंजीनियर मैं गवर्नमेंट्स में भी जा सकता हूँ कहीं पे? यस सर, JEE Sir, वेरी गुड। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, राइट, तो एक तरफ हम ले लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज द सेंटर एग्जाम, यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है, और एक तरफ हम ले लेते हैं स्टेट एग्जाम्स। अगर हम बात करते हैं यूपी पेपर लेती है जेई का, यूपी पेपर लेती है एसडीओ का। अगर हम बात करते हैं अलग अलग, आप डिफरेंट स्टेट से भी होंगे, तो पंजाब, राजस्थान, बिहार, सब अपनी स्टेट्स के लिए एग्जाम लेती है, जेई के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर एक पोस्ट हायर होती है और जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट नीचे होती है। और थर्ड अगर हम बात करें तो सबके पे स्केल्स में थोड़ा थोड़ा ही वेरिएशन होता है। जूनियर इंजीनियर का स्टार्टिंग पे स्केल क्या होगा? व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ जूनियर इंजीनियर इन योर स्टेट? 25 सर। 25,000। ओके। तो अगर हम जेई की बात करते हैं, आफ्टर एचआरए, टीए, डीए, इट विल कम अराउंड 40,000। तो वो आपके 40,000 इन हैंड हो जाती है एज एन फ्रेशर। अब फ्रेशर मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट में, इवन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। तो डायरेक्टली एज एन फ्रेशर अभी आप फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी सब स्टेट्स का अपना क्राइटेरिया, राइट। यूपीएससी आपको फाइनल ईयर में चांस दे देती है इंजीनियरिंग सर्विसेज को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे बिगेस्ट डिपार्टमेंट इंडिया का एज एन कंस्ट्रक्शन या एज एन स्कोप के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवेज। अब इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सब में भी अगर आप स्कोप की बात करें कोविड के बाद, तो अगर काफी स्टेट्स ने क्या करा है, जो एज क्राइटेरिया कर दिया वो 58 कर दिया है। लाइक काफी स्टेट्स में जहां पहले 60 था, अब वो एज क्राइटेरिया रिटायरमेंट का क्या हो गया, 58 हो गया। तो 58 क्राइटेरिया से क्या हुआ, काफी जितने भी जो हायर पोस्ट पे बंदे थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, वो रिटायर हो गए। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, अगेन इंजीनियर ही चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो वो सिविल इंजीनियर ही करा पाएंगे। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोविड के बाद एक ये स्कोप है जो सबसे ज्यादा होने वाला है। क्यों? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस पूरे टेन्योर में किस बंदे की सैलरी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा कोविड में? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ ही गया है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस, ओयो, इन्होंने भी काफी शंटिंग स्टार्ट की। तो अगर हम बात करते हैं किस बंदे की लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, उसकी सैलरी टाइम से आती रही, उसका लाइफ स्टाइल वैसे ही चलता रहा? गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट जॉब, government ठीक है। servant. एग्जैक्टली, जिस जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द टॉप मोस्ट हायर पोजीशंस, सबकी सैलरीज वैसी ही आती रही, सबका वो वैसे ही आता। और प्लस सबसे अच्छा स्कोप क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम फ्रॉम द पास्ट 10 इयर्स बाय एक्सपीरियंस की मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लेते हैं वो एक्सपीरियंस वाले नहीं होते। ज्यादातर वो फाइनल ईयर पास आउट से हार्डली विद इन द 2 year स्पैन ऑफ पास आउट,
कि 2 साल के अंदर अंदर ही पास हुए थे। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको क्यों। कि जब आप साइट पे जाओगे काम करने तो वहां पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बता सकते सिविल इंजीनियरिंग की साइट पे छुट्टी कब होती है, हॉलीडे, मतलब कि किस दिन को हम कहा जाता है कि संडे को हम हॉलीडे नहीं कह सकते, एज एन कि आप भी मेच्योर इनफ होगा, आपको पता लग गया होगा कि भाई संडे साइट पे कोई छुट्टी नहीं होती। तो किस दिन छुट्टी होती है साइट पे, किस दिन छुट्टी होती होगी? सर ये डिपेंड करता है कि साइट पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है। ओके कंक्रीट हो चुकी है तो आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम बात करते हैं स्लैब पड़ रही है तो हाँ जी किसी का आंसर था, बताइए। Sir, I think that they would be maintaining a date sheet or something like worksheet, and according to that, this holiday is given. Okay. See, the life of a civil engineer on site is quite different. Like if you talk about the CSE engineer and a civil engineer, the site job is quite rough. So they are hardly maintaining any schedules, and even the pressure in the civil engineering job is quite high. I'm not demotivating you, but the salary you are getting in civil engineering is quite high as compared to CSE as well. Right? If we talk about like government scope, like hardly we get a scope for CSE engineer in government, but in every department of PWD, public health, irrigation, you will get a जॉब ऑफ सिविल इंजीनियर। तो हम बात करें, अगर साइट की बात करें ना, साइट में दिन रात काम चलता है। अगर आप देख रहे हैं एनसीआर इतनी जल्दी इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे बना के दे रहा है, तो वो कैसे बना के दे रहा है जी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 24/7 हो रही है। आपने देखा कोविड ऑपरेशंस में भी आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ ऑफ लॉकडाउन कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। तो देखिए छुट्टी सिर्फ साइट में ज्यादातर तब होती है जब रेनफॉल हो जाए, ठीक है। जब बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी फाउंडेशंस पे फिल कर जाती है उस वाले पार्ट पे वर्क नहीं होता। तो मुझे कोई ऐसा बता सकता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाईएस्ट मीनार, अगर हाईएस्ट मीनार की बात करें, क्योंकि एक इंटरव्यू से कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं, हाईएस्ट मीनार ऑफ इंडिया, और आपके शायद बहुत पास पड़ता हो, हाईएस्ट मीनार इन इंडिया। कुतुब मीनार। Okay, I got one answer, कुतुब मीनार। Anybody else? कुतुब मीनार। Okay, again कुतुब मीनार, right? मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपना सीवी रिज्यूमे बनाते हैं ना, किसी एक सेशन में रिज्यूमे के ऊपर भी वर्क ऑन करेंगे, तो उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई लाइक सिविल इंजीनियरिंग, दिस एंड दैट थिंग्स। तो बहुत अच्छे सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करा होता है, बट कोई एज एन सिविल इंजीनियर आके पूछ लेता है कि हाँ जी हाईएस्ट मीनार बताइए इंडिया का, ठीक है, तो हमने बताया कुतुब मीनार, और मे बी कैफाफी ने गूगल भी कर लिया होगा। तो देखिए पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जी, हाईएस्ट मीनार अब कुतुब मीनार नहीं है, हाईएस्ट मीनार मेरा कुतुब मीनार नहीं है। चलो इसके बाद मैं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, ताजमहल सबने देखा होगा, ठीक है, अगर कोई नहीं गया तो फोटो में तो जरूर देखा होगा, ठीक है, आप ही के रीजन में आ रहा है वो। तो ताजमहल की हाइट ज्यादा है या मेरी कुतुब मीनार की हाइट ज्यादा है? सर ताजमहल की। Okay, one answer is good, ताजमहल की। ताजमहल की हाइट ज्यादा है। तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, तो शाहजहां कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, तो क्या उस टाइम पे भी अर्थक्वेक के लिए उसको देखा गया होगा? क्योंकि नेपाल अर्थक्वेक के बाद और एनसीआर में अब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट जॉल्ट्स आते हैं हमारे पास अर्थक्वेक के, तो क्या शाहजहां ने उस टाइम पे सोचा होगा कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है? नो सर। नो सर। सर WSM पे बनाते थे ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा रखते थे। ओके, वेरी गुड। WSM पे बनाते थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया मेरा 1984 में, IS 456 1984 में। ताजमहल उससे पहले बना हुआ है, राइट। और अगर लिमिट स्टेट की बात करें वो आया 2000 में, तो ना तो नहीं, वो वर्किंग माइंडसेट रहता था कि ज्यादा इन्वेस्ट कर दो तो सेफ रहेगा ही रहेगा, वो माइंडसेट रहता था। WSM 99 उससे मतलब नहीं सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो देखिए अगर हम बात करें जी, देखिए वो सिस्मिकली सेफ है। देखिए अगर कोई ताजमहल देखेगा उसके चार साथ में मीनार है, राइट। वी टॉक अबाउट लाइक बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो अगर उससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, तो ताजमहल में क्या हुआ, उसके 4 मीनार हैं आपस में। मीनार के क्या है, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या सोम पढ़ी होगी, उसमें हम एक बेसिक थिंग पढ़ते हैं, सीजी। तो अगर आप वो मीनार देखते हो, उस मीनार की जो भी सीजीज हैं आउटवर्ड्स है, अगर इन केस में अर्थक्वेक आ भी गया, अगर वो इनवर्ड्स होती तो डायरेक्टली डोम को क्या कर देती, कोलैप्स कर देती।
अब उनकी सबकी सीजी आउटवर्ड्स, अगर इन केस कोई हायर रिश्टर स्केल पे, हमारे सिस्मिक स्केल पे आ भी गया अर्थक्वेक, तो सारे के सारे बाहर को फॉल करेंगे, तो वो उस टाइम के लिए भी सिस्मिकली सेफ है। अगर हम हाइट की बात करें, हाइट की बात, ताजमहल की हाइट, एग्जैक्टली दैट्स अ गुड आंसर और दैट्स अ करेक्ट आंसर एज वेल, कि ताजमहल की हाइट कुतुब मीनार से ज्यादा है। और सेकंड अगर मैं बात करूं हाईएस्ट मीनार अब इंडिया का कौन सा हो चुका है, फतेह बुर्ज नाम से एक जगह है यहाँ पंजाब में, फतेह बुर्ज नाम से, वहां पे एक मीनार बनाया गया है बाबा बंदर सिंह, वो कुतुब मीनार से भी बड़ा बनाया गया। बट ब्रिक मीनारेट की अगर हम बात करें, जो ब्रिक से बना हुआ है, वो कुतुब मीनार ही आएगा, वो कुतुब मीनार ही आएगा। तो अगर इसी तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जो आपको डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं पूछते हैं कि आप सब अलग अलग रीजन या आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में आती है, सिस्मिक के, सिस्मिक का जोन होता है ना, कौन से जोन में आती है, जोन 4 में आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जोन, बट हम डिजाइन किस में कर रहे हैं आजकल, जोन 5th में कर रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप बढ़ने वाला है, क्योंकि जो साइट्स पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स भी थे 4-5 ईयर्स 10 ईयर्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनका भी अब ये क्या ट्रेंड हो गया आफ्टर कोविड की, नहीं यार अगर गवर्नमेंट होती तो इस टाइम पे शायद थोड़े अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने पड़ते। तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी, आप प्राइवेट में जाइए, गवर्नमेंट में जाइए, मास्टर्स में जाइए, बट आपके पास 3rd ईयर, प्री फाइनल और फाइनल ईयर बेस्ट टाइम होता है इन सारी चीजों को करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अब मैं आपके ज्यादा क्वेश्चंस वाला पार्ट ही लूंगा। नेक्स्ट, माय नेम इज निपुन सियाल और दैट्स माय नंबर 9697791111। इफ एनी स्टूडेंट्स एनी क्वेरी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप इन चीजों के लिए। अब आपके कोई क्वेश्चंस हो कुछ भी, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्कोप के रिलेटेड? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? Hello, am I audible? Yes. So, what is the scope for civil engineering in abroad? Means what country has hit it the most, and where the opportunity for civil engineering has been raised after this lockdown? Okay. If we talk about in terms of civil engineering, the mass construction is going to be in Dubai. Dubai, Abu Dhabi is the best place for civil engineers right now, because they are hiring so many civil engineers. Even they are hiring fresher for the construction part, because the most of the construction and the major construction part is in Dubai. And if we talk about the masters one, like if you want to do master and get settled in abroad, then you have the better option in Canada, because right now they are offering PR with the master programs as well, right? Even I think Nippon, it's very easy to go, you can say Dubai or Abu Dhabi. Just as a student, you must have a knowledge of, you can say, 1 or 2 softwares. If you have command in 1 or 2 softwares, then it will be very, very easy to go in the designing company and work abroad. So I have many students have gone abroad they are just, you can say, at the average level, but by having a good command on Primavera and StatPro, I think they have spent 4 to 5 months over those softwares, and now they are getting a very lucrative package abroad. Exactly, sir. That's right. That's why I was talking about, like, so many freshers are going in Dubai, Abu Dhabi on the basis of softwares. Hello, sir. Yes. Sir, am I on? Yes, yes, you are audible. सर इन दिस टाइम मीन्स लॉकडाउन के टाइम पे सर काफ़ी ज़्यादा ये है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लें, जैसे कि हम लोगों की ब्रांच है सिविल, तो सर उससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स कर लें। तो सर ऑनलाइन इंटर्नशिप्स बेटर रहेंगी, मतलब सही रहेंगी इस टाइम पे, या फिर ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करें? सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बता दीजिए इसके बारे में। देखिए जी, अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले ऑफलाइन का ट्रेंड बहुत पीक पे था। लाइक अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट कि हमने 3 इयर्स पहले दिल्ली में, वी हैव वन सेंटर इन दिल्ली एज वेल, तो दिल्ली में हमने ऑनलाइन एजुकेशन लेकर आए थे, हम ऑनलाइन एजुकेशन में कर रहे थे उस टाइम पे,
बच्चों को ऑनलाइन बताया जा रहा था, तब हम इतने कंफर्टेबल स्टूडेंट थोड़े रिलेक्टेंट होते थे कि नहीं अब ऑनलाइन नहीं सर, अब फिजिकल होना चाहिए ये चीज। बट हमने क्या देखा 2019 में देखा, मतलब आप 2019 के लेके चलिए, 2020 तो आपका 2019 स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि अब आप लोग जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अब पबजी थोड़ी बैन हो चुकी है, सब चीजों पे काफी फ्रीक्वेंट है, मतलब हम अपने फोन पे काफी फ्रीक्वेंट है। सबसे मॉर्निंग में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम उठा के फोन देखते हैं कि आज फेसबुक पे, इंस्टा में क्या हुआ, राइट। तो अगर हम इस एरा में आ चुके हैं तो नेचुरल सी बात है, अगर हम उसमें अगर हम अपने एक वीडियो भी देख लेंगे, स्टडी रिलेटेड वीडियो भी देख लेंगे, तो उसको भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हो तो आपका टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा लगता है। हमारी खुद की लाइव क्लासेस हैं उस पर ऑनलाइन लर्निंग सोल्यूशन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर भी करा रहे हैं, सैड करा रहे हैं, ऑटो कैड करा रहे हैं, प्राइमा वगैरह, इवन गेट करा रहे हैं, या उसमें डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। तो जैसे आप अभी बात कर रहे हो, क्लास में भी सिमिलरली यही प्रेजेंस होती है, सिमिलरली यही पैटर्न होता है कि आप क्लास में पूछ सकते हो, सेम आपका ऑनलाइन में मिल रहा है। द ओनली ड्रॉबैक इन ऑनलाइन व्हाट आई फेल्ट इज कि आपकी डेडिकेशन थोड़ी लो हो जाती है। आप 3-4 दिन पढ़ते हैं, और घर पे रहने से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो पेरेंट्स आपको इतना सीरियस लेते हैं। कोई आपका एल्डर ब्रदर या सिबलिंग्स आता है, वो कहता है गिलास पिला दो पानी का, कभी ये दे दो मेरे को, कभी घर में मम्मा कह देते हैं या पापा कहते हैं जाओ भी दही ले आओ जाके। तो ऐसी चीजें घर में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहती है। अगर घर में आप अगर पढ़ना चाहते हैं और एक रूम को आइसोलेट कर सकते हैं, टेबल को आइसोलेट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इससे बेटर कोई चीज नहीं है आज के टाइम पे। ओके सर, थैंक यू सर। Any other question? Yes, sir. Sir, I'm audible? Yes, yes, you are audible. यस सर, जैसा सर ने बताया कि अगर अब्रॉड में जॉब करना हो तो कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसा नॉलेज रहना जरूरी है। तो सर अगर मैं लास्ट ईयर में हूँ और सर अगर ये सब नॉलेज मेरे पास है तो क्या मैं तुरंत लास्ट ईयर मतलब अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जा सकता हूँ बिना वर्क एक्सपीरियंस का? हाँ जी, जा सकते हैं, बट इसमें दो चीजें हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स किस पे प्ले करते हैं, सर्टिफिकेशंस पे, कि आपने यहाँ से सर्टिफिकेशन ले लिया, आपने बेंटली की सर्टिफिकेशन ले ली। बट जो अब्रॉड की कंपनीज हैं, जैसे अगर आपने सर के काफी स्टूडेंट्स इवन गए भी हुए हैं, ठीक है, जो हमारे टच में भी है, अभी वहां से भी आपके कभी एक वेबिनार कराना तो उनसे भी आपके इंटरेक्शन कराएंगे। तो उस केसेस में क्या होता है, देखिए वो सर्टिफिकेशंस पे इतना बिलीव नहीं करते। इंडिया में बहुत सर्टिफिकेशंस पे बिलीव करते हैं। कोई कहता है जी अच्छा ये सेंटर है, अच्छा यहाँ से सर्टिफाइड आएगा, ये ISO आएगा। बाहर के क्या देखते हैं, आपने आई डोंट नो कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर करा, अगर आपने स्टैड करा है तो आपसे बोल देंगे कि आप ही की यूनिवर्सिटी, आप उसको क्या आप ही अपने घर को डिजाइन कर लोगे। अगर तो आप अपने घर को डिजाइन करके प्रेजेंट कर दोगे एज पर द IS कोड्स कि वर्चुअल वैल्यूज नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो वो आपको ऑप्ट कर लेंगे एज एन फ्रेशर। बट अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो सिर्फ एक कमांड्स आती है, मैं डिजाइन नहीं कर सकता, बस मुझे कमांड्स आते हैं, मुझे पता है कि यहाँ से मैं लोडिंग डाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ज्योमेट्री प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो वो नहीं ऑप्ट करेंगे। तो बस वो प्रैक्टिकली चीज देखते हैं कि आपको आता है। अगर ऑटोकैड की भी बात करें तो आपसे पूछते हैं कि 2D स्ट्रक्चर्स या आप 3D स्ट्रक्चर्स आप बना पाएंगे, आप रेंडरिंग कर पाएंगे, या फिर अगर मैं आपको फाउंडेशन दे देता हूँ, इस फाउंडेशन की आप मुझे स्टील निकाल के दिखा पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो वो चीज कर पाओगे तो आपको डेफिनेटली कंपनी ले जाएगी। और काफी जैसे अगर अब सर के वहां से काफी स्टूडेंट्स गए भी हैं, डायरेक्ट एज एन फ्रेशर ही गए हैं, और आपका जो सैलरी पैकेज होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि वो उनकी करेंसी में आपको पेमेंट आती है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, एक लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूंगा, ये बेस्ट टाइम क्यों है जी। देखिए इस टाइम पे आपके मोस्टली कॉम्पिटिटर्स, कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स क्या है, डिस्ट्रैक्ट पड़े हैं। मतलब कॉम्पिटिटर क्या है, आपके साथ वाले स्टूडेंट्स ही हैं राइट नाउ, जो घर बैठ के काफी, जैसे आप एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछा था कि घर बैठ के क्या हो रहा है, घर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, नॉर्मली क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, पबजी वगैरह, इन सब पे। मैं ये नहीं कहता आपको कि ये सब छोड़ दो, बट अगर आप इस पे थोड़ा टाइम दे रहे हो, अगर 1 आवर दे रहे हो, तो अगर आप 4 आवर्स अपने करियर पे दोगे एज एन फाइनल ईयर, तो ये आपको काफी पे बैक करके जाएगा, और ये लाइफ टाइम पे बैक करके जाएगा। ये वो वाली बात नहीं कर रहा कि 8th में आपने बोर्ड्स में थे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे लाइफ बन जाएगी, 10th बोर्ड्स करोगे अच्छे मार्क्स लोगे लाइफ बन जाएगी, 12th करोगे अच्छे मार्क्स, कुछ नहीं, लाइफ सब बराबर आगे। बट यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ का। अगर आप ये 3-4 मंथ्स, और आपके पास तो बहुत अच्छी गाइडेंस भी है, इवन ऋषभ सर इज देयर, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो वैसे ही इतने स्टूडेंट्स उन्होंने मोटिवेट करके रखते हैं, और बाकी चीजों के लिए, और यूनिवर्सिटी बाकी टीचर्स भी आपके काफी प्रोफेशनल और काफी गाइडेंस देने वाले हैं। और ऑलरेडी आप एक NCR रीजन में हो, तो जितना ज्यादा
अभी फोकस कर सकते हो, इस टाइम पे करिए, देखिए डेफिनेटली आपको पे बैक करके जाएगा, और इतना ज्यादा करके जाएगा आपकी पूरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है. So my name is Nipun Syal. Thank you sir and ma'am for inviting me. Thank you university for inviting me on this platform. Thank you. Thank you, sir. For Thank such you, a sir. nice session. Thank you. Vote of Niveda ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, vote of thanks. Yes, ma'am. Girish will tell about the vote of thanks. Hello everyone. Hello, Girish, you are audible. Hello, I am Girish, a student of civil engineering. I express my gratitude on behalf of the whole civil department and ACS club. Thank you so much, Nipun Syal sir, to motivate students in this pandemic, which affects students' study and their career. And thank you so much to Dr. Rishabh Garg sir, Professor of Civil Engineering Department, to organize that effective event. And thank you so much to our respected HOD ma'am for coordination and for participation. And last thanks to all of you guys to join that webinar. And uh, I think it gives you a direction for your future and help in further. So thank you so much for everyone. Thank you, sir. We hope so such more session from you, such more Sure, ma'am. guidance from you for our students. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yes, sir. Thank Dr. you, Thank you, Nipun. ma'am. Thank you, sir. Nipun, thank you for the, you can say, a very good session on such a short notice. And I hope that your this contribution will, you can say, be always with the Galgotia College. And I want that as you are running a very good, you can say, designing company also, and you have, you can say, very good relations with the other companies also. So I hope that this relation will go beyond this session. And these dear students, which are, you can say, you are well judged, है you have well judged that these students are how much talented. So I request you that you can say few of these students, if maybe recruited from your efforts, then it will be good for all the students also, as well as for the college also. Sure, sir. Sure. We'll do that. My pleasure, Okay. sir. My pleasure. Okay. We will talk on that afterwards. Yes, sure. Thank you, sir. Thank you, Rishabh sir. And then thank you, Nipun sir, for share your valuable knowledge to us. And then Right. thanks to our honorable HOD ma'am. She is always supporting us. And then I would like to thank for ACES club members for arranging. Thank you. Thank you so much. We will paste the feedback link for this MS team. It's very important for all the students to fill the feedback form, because it will help in, you can say, improving the further webinars as well as in the process also. So I request all the students to fill the feedback form. I paste the feedback form in chat box, so please check and fill. Okay, thank you all. Okay, Nipun sir, you can leave. Thank you. Okay, Minu madam. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Okay.